Hi. So now let's write a program for nth Fibonacci number. Okay. So what is a Fibonacci number first of all? So there is a series known as Fibonacci series. Okay. Some people start with 0, some people start with 1. It's fine. Let's start with 1. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 and so on. Okay. So what this series says is that any number is equal to sum of its previous two numbers. Okay. So if I have to get the next number, it is going to be 8 plus 13, that is 21. The next number 13 plus 21, 34. Next number 21 plus 34, 55 and so on. So this is going to go on. So this is what the series is. So 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8. Okay, so this is the Fibonacci series. What we want is that if someone says, let's say n is equal to 7, so first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, our output should be 13. Okay, so this should be our output, right? So if n is equal to 7, our output should be 13. So this is what we want. Okay, so how to go about this now? So to solve this problem, what we can do is we can take two variables first of all. Let's say a whose initial value is 1 and b whose initial value is 1. Okay, so a is over here and b is over here. Now what is the next step? So the next step is we can calculate c is equal to a plus b. Okay, we can calculate c is equal to a plus b, which is going to be our next number. So c should be over here, right? C should be over here. Now what is the next step? What we should do now? Now we should make this as a and this as b, and again using c is equal to a plus b, we should calculate new c, right? Then again this should become a, this should become b, and this should be our new c using c is equal to a plus b. Again this b should become a and c should become b, this will be our new c. Then again b will become a, c will become b, this will be our new c. Okay. So this is what we are going to do. We are going to find c is equal to a plus b first, then we are going to put a equal to b and b equal to c, then we are going to find the new c and so on. Okay. So if n is equal to 7 is there, how many times I will have to calculate c? I will have to calculate c 5 times. Okay. So c is equal to a plus b should happen 5 times, right? It's clear, right? If n is equal to 3, c is equal to a plus b needs to happen only once, right? Because I need this number, so I will just do 1 plus 1 is equal to 2, that's it, and I will be reaching my answer. So if n is equal to 4, I will need to do it twice. If n is equal to 5, I will need to do it 3 times. So we will run a loop which should run n minus 2 times basically, right? Okay. So let's just write the code, it will be much more clearer then. So let me just grab some space. So void name is, let's say, nth Fibonacci number, name of function, you can give any name, Fibonacci number, int n. Okay. So what is the first thing that I want to do? I want to start int a is equal to 1 and int b is equal to 1. Okay. Then int c is equal to 0. Okay. So I am just initializing it with 0, right? Although I will be calculating it c is equal to a plus b, but I am just giving it initial value of 0. Okay. Int I is equal to 1. Okay, so I is the variable which I am keeping for my iteration process. So what is iteration? Basically for the while loop. I used to do initialization, right? You remember it? So that is what I stands for here. So I'll simply write while I is less than n minus 1. Okay, while I is less than n minus 1. Why I am writing this? Just try to understand this thing. Okay, so if here it is I plus plus at the end. Now just try to understand this, that if value of, let's say, n is 7, okay, so I should be less than 6, okay, n minus 1 is 6, so I should be less than 6, I starts from 1, so I can take the value of 1, 2, 3, 4, 5, okay. So let me just write it down and explain you. So if I am writing I less than n minus 1, this simply means, so if n is 7, so I is less than 6, right, and I initial value is 1. So I can take the value of 1,
2, 3, 4, 5. So basically my while loop is going to run 5 times. Okay, so if I have the value of n as 3, so I less than 2, so I started from 1, so I can only take the value of 1, so it is only going to run 1. So I have written I less than n minus 1. Okay, you can also do one more thing, you can take the value of I is equal to 0 and write over here n minus 2, that's the same thing. Okay, so what we are going to do over here is C is equal to A plus B. Okay, then A is going to become B and B is going to become C. Okay, so this is exactly what we discussed. First we are going to calculate C, ठीक है, उसके बाद हम लोग B की वैल्यू है वो A में डाल देंगे और जो C की वैल्यू है वो B में डाल देंगे और दोबारा से हमारा C कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है, और I प्लस प्लस बार बार होता रहेगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रन आर कोड. सो अगर मैं यहाँ पे C आउट C कर देता हूँ, राइट, बिकॉज इन द एंड जो भी मेरा आंसर होगा वो C के अंदर कंटेंड होगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे हो रहा है ना, C इजिकल टू A प्लस बी करते करते हमारी जो C की वैल्यू जो फाइनल आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है या. सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. सो nth फिबोनाची नंबर फॉर लेट्स से 7th ही प्रिंट कर लेते हैं. सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 13. ओके, सो एक बार क्लियर कर देते हैं, हम दोबारा चेक करते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी 13, राइट. व्हाट इज माई 8th फिबोनाची नंबर? माई 8th फिबोनाची नंबर इज 21, राइट. बट यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस करी है, ठीक है. हमने क्या किया कि हमने 1 और 2 को हैंडल नहीं किया है, राइट, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट फिबोनाची नंबर पूछूंगा तो 0 बता दिया उसने, राइट, उसने 0 बता दिया बिकॉज हमने वो चीज़ हैंडल नहीं करी है, बिकॉज C की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है. जब हमारा 1 और 2 होगा हमारा ये वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, ठीक है. अगर मैं 2 भी डाल दूंगा तो भी हमारी जो C की इनिशियल वैल्यू है वही रह जाएगी. तो इस केस में क्या करना चाहिए हमको, ऊपर ही हमको ऑलरेडी कंडीशंस डाल देनी चाहिए. इफ n इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे डबल इज इक्वल टू डालना था, C इज इक्वल टू 1, राइट. ऑल्सो एल्स इफ एंड ऑल्सो यहाँ पे कैपिटल N था हमारा, ठीक है. एल्स इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 2, C इज स्टिल इक्वल टू 1, राइट, बिकॉज हमारे पहले जो दोनों नंबर्स थे वो 1 थे, बाकी तो अपने आप कैलकुलेट हो ही जाएंगे. सो हमको ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी. सो नाउ माई 1 इज कमिंग माई आंसर, ठीक है. तो 1 मेरा भी आंसर आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, राइट. ओके, हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते थे, राइट. जो एक लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन है या तो n 1 है या 2 है तो दोनों ही केसेस में C की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, राइट. सो इस केस इसमें भी हमारा चल जाएगा, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने कैसे कोड लिखा है फॉर द फिबोनाची नंबर. हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सीधे सीधे C को आगे बढ़ाते जा रहे हैं A प्लस B करते करते, राइट. सो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंटिंग प्राइम नंबर टिल n, ठीक है. अगर मुझे कोई एक नंबर गिवन है, लेट्स से 20 गिवन है, तो 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे प्रिंट करने हैं. तो उसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है जैसे, ठीक है. तो क्या करना होगा, ओके, तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले पेपर के ऊपर सॉल्व करना चाहिए, राइट. तो पहले उसको एक बार सॉल्व करते हैं, सोचते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा, फिर उसको कोड करेंगे, ठीक है. सीधे सीधे कोड करने नहीं जाएंगे. चलो, ठीक है. प्राइम नंबर्स टिल n हमको करने हैं. जैसे मुझे अगर 20 गिवन है तो क्या प्रिंट करना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. ओके, आई थिंक यही प्राइम नंबर्स होते हैं बस 20 तक. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस. तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि यार 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं. तो आंसर हमारा ये आना चाहिए, ठीक है. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ हमारे आंसर को, सीधे हम देखते हैं कि मुझे क्या करना है. सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, चेक करना है कि 2 प्राइम है कि नहीं, फिर 3 चेक करना है प्राइम है कि नहीं, फिर 4 चेक करना है, फिर 5 चेक करना है. कहाँ तक चेक करना है,
मुझे 20 तक चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। जो जो नंबर्स प्राइम हमको दिखते जाएंगे हम लोग उनको प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चेक कैसे करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। चलो बीच में से कोई भी नंबर ले लेते हैं कि हमको चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं। लेट्स से मुझे यहाँ पे बीच में 13 चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगा? मुझे अगर 13 चेक करना है प्राइम है कि नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं 2 से लेके उसको 12 तक हर नंबर से डिवाइड करके देखूँगा, ठीक है। मैं पहले 13 को 2 से डिवाइड करके देखूँगा, फिर 13 को 3 से डिवाइड करके देखूँगा एंड सो ऑन। अगर मैं 13 को 12 तक डिवाइड करते करते पहुँच गया और वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ वो मेरा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरह से मुझे 14 के लिए चेक करना है, 15 के लिए एंड सो ऑन टिल 20 तक सारे के सारे नंबर्स को चेक करना है। मुझे 20 के लिए चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, क्या करना है, 2 से लेके 19 तक हर नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल गया जिससे डिविजिबल हो गया वो, तो वो मेरा नंबर प्राइम नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर इसका मोस्ट एफिशिएंट वे मैं बात करूं तो मुझे 20 के लिए 19 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, या 13 के लिए 12 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काफ़ी कम में काम चल जाएगा, बट अभी के लिए मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि मुझे वहाँ तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो void prime numbers till n, राइट। तो आई होप ये सब फंक्शन तो सबको क्लियर हो रहा है, राइट, ठीक है। void हमारा क्या मतलब था कि हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, और हमारा यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, हमारा इनपुट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, इंटीजर हमने ले लिया। सो इसका क्या मतलब है कि इस इंटीजर तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सो लेट मी टेक इंट i इज इक्वल टू 2, राइट। वाई एम टेकिंग फ्रॉम 2 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम लोग 2 से लेके 20 तक, बेसिकली अब 20 की जगह मैं n लिख दूंगा बिकॉज मुझे n तक सारे नंबर्स चेक करने हैं कि प्राइम है कि नहीं, ठीक है। सो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू n, राइट, बिकॉज मुझे 2 से लेके n तक सारे नंबर्स चेक करने हैं। जो जो नंबर्स मुझे मिलते जाएंगे प्राइम है उनको मैं प्रिंट करता जाऊँगा सिंपली। चलो, now I will need another variable which I am taking int k is equal to 2, right। क्यों मुझे एक और वेरिएबल क्यों चाहिए? बिकॉज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि मुझे, जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर नंबर यहाँ से लिया, जैसे मुझे मान लो 2 चेक करना है या 13 चेक करना है, तो मुझे यहाँ से 2 से लेके 12 तक करके देखने पड़ेंगे, सब नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो वाइल तो इंट k इज इक्वल टू 2, राइट। सो यहाँ पे मुझे इस वाइल के अंदर चेक करना है कि जो i की करंट वैल्यू है, जैसे i की लेट से करंट वैल्यू 13 है, तो क्या मेरा i एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं उसको 2 से लेके, बेसिकली k इज इक्वल टू 2 से लेके i माइनस 1 तक चेक करूँगा, राइट। सो बेसिकली वाइल k इज लेस देन i, राइट, वाइल k इज लेस देन i, इफ i मॉड्यूलो k, राइट, मॉड्यूलो की यूज़ कर रहे हैं ताकि हम चेक करने के लिए कि वो डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। इफ़ i मॉड्यूलो k इज इक्वल टू 0, देन वो मेरा प्राइम नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, वो मेरा प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाइल लूप शुरू होने से पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि वो मेरा नंबर प्राइम है, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि वो मेरा एक नंबर प्राइम नंबर है, राइट। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि माई नंबर इज़ प्राइम नंबर, ओके। सो बूलियन इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, बिकॉज बूलियन वॉज ट्रू एंड फॉल्स, सो मैंने उसमें ट्रू डाल के रख दिया कि अभी मैंने मान लिया प्राइम है। अगर मेरा एक भी नंबर से डिवाइड हो गया, मतलब अगर मेरा ये इफ स्टेटमेंट के अंदर कभी भी वो गया, तो उसको मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा कि इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स बोल दूंगा, राइट। तो इतना सा काम मुझे कर देना है, बस उसको फॉल्स कर देना है, राइट। तो ये काम मैं कर दूंगा एंड आफ्टर मेरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, राइट, वाइल लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा इफ़ इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, सी आउट आई एंड, ठीक है। अब मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, अगर मेरा वो प्राइम है तो उसको प्रिंट कर दूंगा, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। सो ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे i प्लस प्लस डालना है एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे k प्लस प्लस भी डालना है, ठीक है। ये मिस नहीं करना है, k प्लस प्लस और i प्लस प्लस मिस नहीं करना है, राइट। इंक्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। इंट i इज इक्वल टू 2 से हमने स्टार्ट किया, इंट k इज इक्वल टू 2 लिख दिया हमने यहाँ पे,
वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन, बूलियन इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। पहले हमने मान लिया कि वो ट्रू है। अगर एक बार भी इसमें गया वो, अगर एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा, अदर वो इनिशियल वैल्यू जो उसकी प्राइम थी वो ट्रू की ट्रू रह जाएगी। और यहाँ पे मुझे इस प्राइम मैं बाद में चेक कर लूँगा जब मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और मैं अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट कर दूंगा। एंड हेयर आई हैव आई प्लस प्लस एंड आई थिंक दिस शुड रन। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, तो प्राइम नंबर स्टिल एन, सो प्राइम नंबर स्टिल एन, लेट मी पहले इसको हटा देते हैं। प्राइम नंबर स्टिल एन, लेट से 20 डाल देते हैं। ओके, सो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन, सो लेट्स चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। Okay, so the problem is we are not setting k is equal to 2 over here. Okay, so we are not setting k is equal to 2. I think let me just run it. If it works, then I'll just explain you. Okay, yes, so now if you see the new answer 2 3 5 7 11 13 79, let me just clear this and run it once again. Yes, so it is 2 3 5 7 11 13 17 19. So those are the prime numbers that we needed. So this was something we missed, k is equal to 2. So what is that? Now every time we are checking for a new number, we have to start it from k is equal to 2, right? That is very obvious. Just understand this thing. Since now for 13 if I am checking, I started from 2 till 12, ठीक है। अब अगर मुझे 14 के लिए चेक करना होगा तो फिर से मुझे 2 से स्टार्ट करना होगा ना, तो मुझे k की वैल्यू सेट तो करनी पड़ेगी ना 2 से, तो इसलिए मुझे k की वैल्यू 2 से सेट करनी थी। सो दैट वाज अ थिंग वी मिस, जिसके कारण कि हमें वो छोटा सा एरर मिल रहा था। ओके, सो आई होप अभी सबको समझ में आ गया है कि हमने प्राइम नंबर स्टिल n का फंक्शन कैसे लिखा है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज, इफ़ यू सी ओवर हेयर कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 से लेके 13 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देख रहे हैं। व्हाट इफ अगर मुझे चेक करना है 14 प्राइम है कि नहीं, अब मैंने 2 से चेक कर लिया, 2 के साथ डिवाइड करने पे क्या हुआ था, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि वो नॉट प्राइम है। नाउ डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड कि मैं उसको 3 से भी डिवाइड करूँ, 4 से भी डिवाइड करूँ और 13 तक डिवाइड करते जाऊँ? डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड? आई थिंक देयर इज़ नो नीड। एक बार कोई नंबर हमने देख लिया कि वो नॉट प्राइम है तो वो डेफिनेटली नॉट प्राइम है, यू डोंट नीड टू चेक एनी फर्दर। सो हम लोग इस कोड में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स ऐड हो गया, सो देयर इज समथिंग नोन एज ब्रेक, ठीक है। हमारे पास एक ब्रेक होता है। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है कि जो इमीडिएट वाइल लूप होता है, इमीडिएट मतलब उसके जस्ट बाहर वाला वाइल लूप होता है, उससे बाहर आ जाओ एक बार, ठीक है, उस लूप से बाहर आ जाओ। समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है, वाइल के अंदर वाइल है, ठीक है, और उसके अंदर अगर ब्रेक लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि जस्ट उसके बाहर वाले से बाहर आ जाओ, ठीक है, उसको एक बार हटा दो और बाहर आ जाओ यहाँ पे। ओके, वैसे ही अगर मेरे पास लेट से वाइल के अंदर वाइल है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है, वाइल के अंदर वाइल है, उसके फर्दर अंदर वाइल है और उसके अंदर ब्रेक लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ इससे बाहर आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, सो वो इमीडिएट जो वाइल लूप होता है उससे बाहर आ जाता है। तो अभी क्या होगा, वो फर्दर उसको अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 3 4 5 6 से नहीं चेक करेगा, राइट। सो इससे हमारा कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर को कम काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आंसर सही मिलेगा। ओके, सो अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो अगेन आंसर मेरा वही रहेगा, 2 से लेके 19 तक ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, सो अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखो, राइट। सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।